Good morning. Good morning, sir. We'll wait for a minute and then we will Okay, start. sir. Okay, we will get started. मितांशु and दुष्यंत, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. Good morning, sir. I am leaving, sir. You are leaving? Yeah. Okay, okay. I think Web's audio is still not connected. We'll just wait for a few more seconds. Okay, we'll start and okay, we'll get started. We can't keep waiting. Okay. Okay. ठीक है, so we were revising the chapters on three-dimensional geometry and the vector calculus. Okay, so write the position vector of the point which divides the join of the points with position vectors 3a minus 2b and 2a plus 3b in the ratio 2:1. Okay, so we are talking of Vaibhav, switch on your camera, beta. Vaibhav, Krishant, Mitanshu, camera on करिए. Good morning, sir. Good morning. Karthik, switch on your camera. Okay, sir. Others also. Mitanshu and Vaibhav. Vaibhav, your camera is still remaining. I think he has an unstable connection. His audio has gone. Okay, we will continue. Okay. So now what do we have to do? We are given two vectors, right? So there are two vectors given, but what type of vectors are these? These are position vectors, okay? So position vectors are nothing but points in vector notation, right? So this is one vector and the other vector is this. We have to find a point which divides them in the ratio 2:1. Okay, so 2 with the first vector and 1 here. Okay, so हमको
को क्या करना है इसमें, वी हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला, राइट? सो द पोजीशन वेक्टर, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर ऑन दिस साइड, राइट? सो वी विल से a M1 X yes M1 X2 प्लस हाँ Y यस कार्तिक, लेकिन बस एक डिफरेंस है, राइट? व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, लेकिन आप कौन से वाला सेक्शन फॉर्मूला बोल रहे हो, जो कार्टेशियन फॉर्म में होता है, राइट? आप ये वाला बोल रहे हो कि जो x1 है, जो मतलब जो x मान लीजिए x3 अगर डिवाइड कर रहा है, जो एब्सिसा है, तो उसको आप बोल रहे हो कि mx2 प्लस nx1 by m plus n, राइट? तो ये वाला जो होता है, ये पॉइंट्स जब गिवन है हमें कार्टेशियन फॉर्म में यूज होगा। अब हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो बिल्कुल सिमिलर ही फॉर्मूला है, लेकिन हम पोजीशन वेक्टर पे लगा रहे हैं, दिस इनटू दिस एंटायर वेक्टर, ओके, प्लस दिस इनटू दिस एंटायर वेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 2 plus 1 3 हो गया। हाँ, तो ये डायरेक्टली हमें इससे क्या आता है, ये करने से डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर आ जाता है, ठीक है? इसमें हमें हर एक कोऑर्डिनेट अलग अलग निकालना पड़ता है ना, एक एक करके। इसमें हमें डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर आ रहा है एक ही बार में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 4a प्लस 6b प्लस 3a माइनस 2b by 3. So ये is 7 by 3a plus this is what 2. 4b upon 3. Right? So this is our answer straight away. Okay. Now, obviously we have made an assumption here. And what is our assumption? That it divides, the point divides the line internally. Okay. Which is a fair assumption to make. When not stated, usually we tend to assume it is internal division. अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, तो फिर हम एक्सटर्नल भी लेते, राइट? उस केस में हम 1 को की जगह क्या वैल्यू यूज कर लेते, -1. दैट वुड हैव बीन द ओनली डिफरेंस, राइट? Everybody understands the concept of external division, right? Nobody has doubt on external division, because कई बार स्टूडेंट्स को एक्सटर्नल डिवीजन नहीं समझ आता, इंटरनल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। Everybody is comfortable with external division also ना? एक्सटर्नल डिवीजन में बस क्या होता है कि वो जो डिवीजन है, अगर हम 2:1 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो इस तरफ निकला हुआ है, राइट? और ये टोटल को हम 2 मानते हैं, और जो ये स्मॉलर पार्ट है ये 1 है उस केस में। द स्मॉलर इज द वन ऑन द आउटर साइड ऑलवेज, राइट? एंड द स्मॉलर वन कैन इज देन टेकन एज द नेगेटिव नंबर। दैट्स द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इट। तो मतलब m और n होता है ना, तो उसमें m ग्रेटर देन n लो और n को नेगेटिव लो। ऐसे करके जब करते हैं तो वी गेट द राइट आंसर इन दैट। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। Write the number of vectors of unit length perpendicular to two vectors. तो यहाँ पे हमें वेक्टर्स नहीं बताने हैं कौन से हैं, राइट? इट इज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन। हमें वेक्टर्स नहीं निकालने हैं, हमें केवल नंबर ऑफ वेक्टर्स बताने हैं कि एक वेक्टर होगा, 2 होंगे, 4 होंगे या इनफाइनाइट होंगे, क्या जो भी आंसर है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल हियर। तो 2 वेक्टर्स गिवन है, इनसे परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ के वेक्टर, तो मतलब लेंथ तो फिक्स हो गई, 1 है, राइट? तो डायरेक्शन से ही वेक्टर डिफरेंशिएट होंगे। अब तो कितनी डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं? 2 गिवन वेक्टर्स से, ठीक है? 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है।
इससे परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करके आप लैंग्वेज को देखेंगे तो इससे परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। एनीबडी? इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमको, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ग्रिशांत, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। कैसे, व्हाट इज द आंसर? इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आंसर क्या लगता है आपको होना चाहिए? देखिए, दो वेक्टर हैं तो किस पे होंगे? दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। दो तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। तो ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक प्लेन पर हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या रह गया? क्वेश्चन ये रह गया कि एक प्लेन से परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, बताइए। मान लीजिए ये एक प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर या तो ऐसे जा सकते हो आप या फिर ऐसे जा सकते हो। दो ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, यस सर, दो ही हैं। राइट। क्योंकि हमने, अगर यूनिट वर्ड नहीं होता यहाँ पे, नंबर ऑफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू दिस होता, फिर तो ये एक वेक्टर हो जाता है, ये एक वेक्टर हो जाता है, ये एक वेक्टर, है ना, इनफाइनाइट हो जाता आंसर। लेकिन हमने लेंथ फिक्स कर दी, वन ऊपर जा सकता है, वन नीचे आ सकता है। वेक्टर को पैरेलली मूव करते रहो तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर केवल डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बदलने से चेंज होता है, ठीक है ना। तो या तो आप ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट। तो इसका आंसर जो है 2 है। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, अब अगर कोई कहे कि नहीं जी हमें तो उसका वर्किंग बताओ, राइट, आइडियली इट डजंट मेक सेंस, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई कहता है इसका वर्किंग बताओ, तो इसका वर्किंग कोई ये बताएगा कि भाई इसका, इससे परपेंडिकुलर दो ही वेक्टर्स पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? मॉड्यूलस से डिवाइड करके। एक तो ये पॉसिबल है, और दूसरा क्या सर, हाँ, ग्रीशांत आपके कहने के बावजूद भी कैमरा ऑन नहीं कर रहा है सर। ग्रीशांत, यू स्विच्ड ऑन द कैमरा वंस आई सॉ, उसके बाद क्यों ऑफ कर दिया बेटा? ऑन करिए। सर इस बार जब आपने बोला ना, उसके बाद ग्रीशांत का लगातार ही ऑफ आ रहा है, एक बार भी ऑन नहीं किया ग्रीशांत ने। अच्छा, ग्रीशांत, आर यू देयर और नॉट? सर लेफ्ट कर दीजिए आप। ग्रीशांत, ओके, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या वेक्टर बनेगा? बी क्रॉस ए, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि वेक्टर्स भी लिखो, तो हम यही लिखेंगे, और यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये इसका नेगेटिव होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, find the vector equation of the plane with intercepts 3, -4 and 2 on x, y, z axis respectively. How would we do that?
देखिए, याद करने की कोशिश करिए कि प्लेन की 4 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, राइट? कौन कौन से हैं वो फॉर्म्स? कैन समबडी टेल मी? जितने याद है उतने बोलिए एटलीस्ट। फर्स्ट फॉर्म कौन सा है प्लेन का? नॉर्मल एंड नॉर्मल, कार्टेशियन। हाँ, नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एक फॉर्म होता है जिसमें 2 चीजें चाहिए हमें, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर चाहिए और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, राइट? दूसरा फॉर्म क्या होता है? पॉइंट चाहिए एक और नॉर्मल चाहिए। सर मितांशु ने कैमरा ऑफ कर दिया अपना। मितांशु, can you switch on your camera, beta? What is this? Your camera was on. You were the first one to join the class. फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? Switch on your camera. अभय, मितांशु, मितांशु, yeah, okay. Abhay, you had this question on which practical book to buy, right? Right, Abhay? ठीक है, तो I checked with राजीव सर also. तो जो दनकौर में बुक शॉप है ना, वो जो ब्रांड दे रहा है उन्होंने कहा वही लेना है, क्योंकि फिर then every student will have the same thing. ओके सर, हम सब उसे ले लेंगे। हाँ, बस उससे ले लीजिए। फिजिक्स और मैथ की। हाँ, सर क्या लेना है? मैथ? प्रैक्टिकल बुक्स। ओके सर। वो ओके, तो आप बताओगे ना, प्रैक्टिकल्स तो। हाँ हाँ, वो फिजिक्स के तो राजीव सर करवा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, प्रैक्टिकल्स राजीव सर करवा रहे हैं, राइट? ओके सर। तो नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक फॉर्म है, फिर पॉइंट एक गिवन पॉइंट और नॉर्मल एक फॉर्म है, तीसरा है 3 पॉइंट फॉर्म, और चौथा क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और इन सब के 2 फॉर्म्स होते हैं हर एक में ही, एक कार्टेशियन होता है, एक वेक्टर होता है, राइट? तो एक्चुअली ये 8 फॉर्म्स नहीं होते, ये 7 ही होते हैं, क्योंकि ये सबके तो दोनों फॉर्म्स हैं, लेकिन इंटरसेप्ट का केवल कार्टेशियन फॉर्म ही होता है, वेक्टर फॉर्म नहीं होता है एज सच। ठीक है ना, तो कोई डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म गिवन नहीं है उसके लिए। ओके, बिकॉज वेक्टर में द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहां पे एक प्लेन किसको कट करता है? एक्सिस को कट करता है। और जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो वेक्टर में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, राइट? दे आर फ्री वेक्टर्स। ओके, तो इसीलिए इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्चुअली जो वेक्टर इक्वेशन है उसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। अब ये क्वेश्चन कैसे इन्होंने, एंड दैट इज वेयर दे आर ट्राइंग टू ट्रिक द स्टूडेंट। उन्होंने पूछा कि वेक्टर इक्वेशन बताइए ऑफ अ प्लेन with these intercepts। ठीक है ना, तो अब कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ लिया, और इंटरसेप्ट फॉर्म तो वेक्टर का होता ही नहीं है। लेकिन हमको इस तरह नहीं सोचना है, राइट? हमारे पास 2-3 तरीके हैं ये करने के। एक तरीका क्या है कि हम क्या कहेंगे कि देखिए, हम कार्टेशियन फॉर्म लिख लेंगे पहले। तो कार्टेशियन फॉर्म तो इंटरसेप्ट से आसान कोई होती नहीं है। हर एक चीज के नीचे उसका इंटरसेप्ट लिखिए, इज इक्वल टू 1 लिखिए, राइट?
तो कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत ही आसान है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसको जो है इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, राइट? दैट इज वन ऑप्शन वी हैव, ठीक है ना? तो और हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज वन ऑप्शन वी हैव. The second option we have is, we know these are the intercepts, so we know 3 points through which this plane goes. What are those 3 points? Can you tell me what are those 3 points? सर 0 0 0 और 2 वही तो मैम हमने Right? यही सोचा तो था, ये आपसे 3 क्या पूछा? पॉइंट से जान, तो हमें 3 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, राइट? वो हम कैसे लिखते हैं? We will just use any one of these as the reference point. So मान लीजिए मैंने x, y and z आ गया हमारा, ठीक है ना? और अब we need to write the direction ratios of any two subtractions, right? So we can take any one, okay? तो एक पॉइंट तो हमने इसमें यूज कर लिया. अब हम दे सकते हैं जैसे 3 minus 0 0 minus 4, which will become 4, and 0 minus 0, and we can say take 3 0 minus 0 and 0 कैमरा ऑफ minus, नहीं करना, आप क्यों करते हो बार बार? yeah, sorry ma'am. कैमरा ऑफ नहीं करना, सर का भी देखो रिदम खराब होता है, आपको पढ़ा रहे हैं आप ही, तो फायदा है, कोई हमारा तो फायदा है नहीं इसमें, तो ये गलत बात है ना बेटा, आप बार बार ऑफ करके बैठ जाते हो. Yeah, please keep your cameras on. प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो पहले ही कि आप किस रीजन से कैमरा ऑफ कर रहे हो, ऐसे मत क्या करो. Okay, so is equal to क्या होता है? is equal to क्या लिखूं? This determinant should be equal to 0 0, ठीक है? तो हम ये इस तरीके से कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो बट आई थिंक दिस विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, राइट? सो हम इस तरह से कर लेते हैं. लेट्स एक्सपेंड इट ऑन एनी ऑफ द very, so we anyway want it in xyz form, so we will expand it on first row, although it has no zeros. Still it's okay to do that. X minus 3 into minus 8 oh, just a second, sorry. I just made one mistake here. Can you tell me what mistake I made? सर कहाँ पर? यहाँ पे एक गलती की है मैंने. क्या गलती कर दी? सर आपने x माइनस 3 लिखा है, y प्लस 4, z माइनस 2. नहीं, गलती क्या की है मैंने एक फंडामेंटल मिस्टेक कर दिया. मैंने ये गलती क्या कर दी ना, मैंने ये कार्टेशियन फॉर्म ही लिख दी दोबारा से. ये तो 3 पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म है ना, यही आ जाएगा हमारा वापस, राइट? आई शुडंट हैव डन दैट. मुझे 3 फॉर्म का कौन सा फॉर्म लिखना था? वेक्टर फॉर्म लिखना था, राइट?
सर तो आपने गृशांत को दोबारा से ऐड किया है और गृशांत ने दोबारा से अपना कैमरा ऑफ ही रखा हुआ है सर। Grishant, switch on your camera. You have re-entered, right? कैमरे की वजह से बेटा आपको रिमूव करना पड़ा था, तो ऑन रखिए ना कैमरा। Grishant, अनम्यूट योरसेल्फ। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कैमरा ऑन करने में तो कैन यू प्लीज टेल मी दैट। हाँ, अब ऑन रखिए ग्रीशांत, ठीक है, डोंट स्विच इट ऑफ। तो कौन सा इक्वेशन लिखूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म लिखना है मुझे इसका यस सर। 3 पॉइंट का, तो कौन सा होता है वेक्टर फॉर्म, एनीबडी रिमेम्बर्स? R, which is the generic vector, okay, R minus one of the position vectors, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे किसके साथ, बाकी दो पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस के क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इट कुड बी एनी टू, राइट? सो लेट्स से B minus A क्रॉस C minus A, ये वाला फॉर्म लिखना चाहिए था हमें, ओके, क्योंकि हमें तो वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो ये लिखना चाहिए था। नाउ वी कैन राइट। सो ए वेक्टर, पहले हम अपने वेक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है हमारे ए वेक्टर? ए वेक्टर को ये मान लेते हैं 3i इज ए वेक्टर, राइट? बी वेक्टर इज -4j एंड सी वेक्टर इज व्हाट, 2k, right? Now let's write that R minus 3i dot B vector minus A vector. What is B vector minus A vector? Minus 4j minus 3i cross C vector, which is 2k minus 3i is equal to 0. Okay. So this we have to now expand. R minus 3i what is this cross this? How will we do that? -4j क्रॉस 2k क्या होगा? -4j क्रॉस 2k। अब है वीडियो ऑन रखिए। बताइए क्या होगा? -4j क्रॉस 2k -3j क्रॉस 2k प्लस 4j क्रॉस 3i प्लस 3i क्रॉस 3i, राइट? ये हो गया ना। इसको बताइए ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से बताइए। क्या होगा ये? -4j क्रॉस 2k। j क्रॉस k क्या होता है? व्हाट इज j क्रॉस k? j क्रॉस k यस सर। याद है आपको कैसे करते हैं ये? देखिए याद रखिए, I j k जे
ठीक है, वो तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर हाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो ओके, बट यहाँ पे ये छोटे थे ना वेक्टर्स, तो दिस इज ऑल्सो फास्टर वे ऑफ डूइंग इट. सो आई क्रॉस जे होता है के, ठीक है, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है जे. ठीक है, अगर उल्टा देखेंगे जे क्रॉस आई विल बी माइनस के. ठीक है, तो सीक्वेंस में चलता है, अगर सीक्वेंस उल्टी है तो नेगेटिव होता है, और आई क्रॉस आई is 0, j cross j is 0, and k cross k is 0. These are important values to remember. Okay? So j cross k क्या होगा? I होगा, right? तो ये -8i हो गया. j minus j नहीं, माइनस i क्रॉस k था ना, हाँ, i. What is I cross k? I cross k is minus j, so ये plus 6j हो गया. Now j cross I क्या होता है? माइनस k, so ये -12k हो गया. और I cross I क्या होता है? 0. तो ये हमारे ब्रैकेट में आ गया, इसके साथ r-3i का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन है. Okay, so this is the equation of the plane passing through the point 3i, okay, 3i, and this is the equation of the normal to this plane. सर गिरशांत का कैमरा फिर से ऑफ हो गया है. मैम मेरे ख्याल से ना ग्रीशांत इस समय वो ऑफलाइन ही हो गया है, वो ही इज नॉट इवन कनेक्टेड बाय ऑडियो, उसका कनेक्शन शायद चला गया है, तो Okay, वो sir. सुन नहीं पाएगा हमें. वंस हिज ऑडियो गेट्स कनेक्टेड आई विल आस्क हिम. ठीक है सर. ठीक है, तो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तो इसको करने के 2-3 तरीके बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लुक में ये एकदम से कॉम्प्लेक्स लगता है क्वेश्चन. ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point where the line through the points A and B crosses the XZ plane. Okay, also find the angle which this line makes with the XZ plane. तो ये पार्ट तो मैंने कट कर दिया क्योंकि आपको नहीं पढ़ाया है, इस बार के कोर्स में से हटाया जा चुका है. ठीक है, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस पार्ट. लेकिन फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? ये वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करिए, काफी मार्क्स का आता है दोनों मिलाकर, 3D एंड वेक्टर. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट इज एक्चुअली, इफ यू आस्क मी, इट इज अ इजियर चैप्टर. अगर आप फॉर्मूले याद रखेंगे, थोड़े फॉर्मूले ज्यादा हैं और चैप्टर्स के मुकाबले, बट इंटीग्रेशन से तो कम ही. और लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं बहुत ज्यादा. देखिए, इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस के बाद भी फंस सकते हैं आप. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आंसर गलत आ जाते हैं स्टूडेंट्स के डिस्पाइट नोइंग. ये श्योर शॉट अच्छे नंबर हैं आपके, 12-15 नंबर का आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा. ये हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस का कम मार्क्स का आता है, लेकिन वो भी शॉर्ट शॉर्ट नंबर्स है ना ये, तो इनकी अच्छी प्रिपरेशन करके रखिए. ये शॉर्ट शॉर्ट नंबर्स हैं आपके, इनमें नंबर खोना बहुत दुख होगा. Find the coordinates of the point where the line through the points crosses the XZ plane. तो XZ plane से अगर एक लाइन जा रही है तो क्या होगा? XZ plane की क्या खासियत है?
ठीक है, चलिए we'll come to that. सबसे पहले एक लाइन पासिंग थ्रू these 2 points, उसकी इक्वेशन बताइए क्या बनेगी। पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बनेगी। We will take the first point, x minus 3 और नीचे upon 5 minus 3, right? yes 2 आ गया is equal to y x y minus 4 नीचे is equal to 1 minus 4 minus 3 1 minus 4, तो नीचे -3 आ गया is equal to z z minus 1 और नीचे 6 upon 6 minus 1 5 ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा ले लेंगे टू सॉल्व, राइट। तो अब हमारे पास एक जो जेनरिक फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड आ गई, वो आ गई x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 4 एंड z इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब एक्स जेड प्लेन की क्या खास बात होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स जेड प्लेन। ये मान लीजिए हमने लिया एक्स वाई जेड, राइट। तो एक्स जेड प्लेन क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज द एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन की क्या खास बात है, इस पे y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। वो प्लेन जिस पे y इज इक्वल टू 0 उसी को एक्स जेड प्लेन कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर ये इस प्लेन से पास करेगी तो वहां पे y इज इक्वल टू 0, यानी 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 implies lambda is equal to 4/3. Now we can go and put the value of lambda and get the values of x and y. So यहाँ पे lambda की value लगाई, so 8/3 plus 3, okay, 8/3 plus 3 is equal to 17/3, and यहाँ पे लगाई तो 20/3 plus 3 is equal to 29. No, sorry, 23/3. Okay, so point क्या बन गया हमारा, 17/3, y तो 0 होना ही है, and 23/3. Okay, but this is a very easy question, 1 या 2 marks के आते हैं इस तरह के questions, ठीक है। with the second part it could have been a 2 or 3 mark, otherwise 1 or 2 mark question, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए, ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसको ये लैम्डा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और फाइनली एक्स जेड प्लेन का क्या मतलब है, कि इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 है, ये समझ आना चाहिए। बस इतना ही है, कैलकुलेशंस ना के बराबर। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड, वी विल मीट अगेन, ओके, एट 12:10, 12:10 हाँ 12:10. okay sir Okay, we'll continue with more exercises. okay sir Okay, thank you. Bye bye. thank you sir Thank you, sir. Thank you. Bye.